Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Necessary Nutrient and Balanced Diet. Plants can make their own food with the help of substance that present in their leaves called chlorophyll. But the animals and human beings cannot make their own food. They depend on plants or other animals and animal products as food. आप सभी को पता है प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. बट एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स नहीं बना सकते, इसीलिए वो प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए. Component of food. The food you eat each day make up your diet. All food items have nutrients. Nutrients are useful substances present in the food which the body needs. Carbohydrates, fats, protein, vitamins and minerals are different types of nutrients. Our body needs these nutrients. आप डेली खाना खाते हैं, राइट? आपकी उन खाने में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. तो ये सारे आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके खाने में पाए जाते हैं. Protein for growth and repair. From the time you were born to the age of 18 to 20 years, your body will grow. Milk, paneer, dal, beans, egg, chicken and mutton give us protein. The cell of our skin, nails, hairs and many muscles in our body made of protein mostly. Protein helps in our body for making of new cells when old cells are dying. Protein हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखिए जिस टाइम से हम जन्म लेते हैं टिल 18 to 20 ईयर्स तक हमारी बॉडी ग्रो करती है और बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन का बहुत ज़रूरी है. प्रोटीन एक्चुअली क्या करते हैं कि जितने भी वर्न आउट सेल्स होते हैं, वर्न आउट टिश्यूज होते हैं, उनको रिपेयर भी करती हैं. वी नीड प्रोटीन टू ग्रो न्यू सेल्स and repair the damaged cells in the body. Soybeans and oil pulses are highly protein rich diet. अब आपको मैंने बताया कि डैमेज सेल को रिपेयर करने का काम कौन करता है? प्रोटीन. इसीलिए हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए. Carbohydrates as energy giving food. Carbohydrates provide energy which is used to perform every function of the body. Wheat, rice, corn, fruit, potato, sugar and honey are some sources of carbohydrates. All healthy children are physically very active as they require energy rich food in their daily diet. अब देखिए एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से. और बहुत सारे ऐसे हमारे खाना है जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं. जितने भी हेल्दी चिल्ड्रन होते हैं एक्चुअली फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं, तो उन्हें एनर्जी फूड की बहुत ज़रूरत होती है. Our body need energy all the time even when we sleep. Our lungs expand and contract all the time when we breathe. Our heart pumps blood around our body using energy. All these activity need energy, so carbohydrate is essential in our daily diet. अब हमारी बॉडी को कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो तो काम करती ही रहती है. जैसे हमारे लंग्स हैं एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंप करता रहता है, तो इस सब के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. Fats give us more energy than carbohydrates. Milk, cheese, butter and nuts are fat-containing food. Fats keep our face glowing, but when we take more fat and carbohydrates in our diet, which our body needed, it is stored as extra fat in our body. अब फैट जो है वो भी एनर्जी गिविंग फूड है एंड इनफैक्ट फैट जो है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है. फैट जो है हमारे फेस को ग्लोइंग रखता है, लेकिन अगर हम फैट या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे तो फिर हमारी बॉडी में ये एक्स्ट्रा फैट के रूप में स्टोर हो जाएगा. Vitamin and mineral for health. Vitamin and mineral keep us healthy. These are needed by us in very small quantity. They help our body to fight diseases. If we do not get them in sufficient quantity, we have to suffer with dangerous diseases. Fresh fruits and vegetables are rich source of vitamins and minerals. अब हमारी बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत बहुत थोड़ी सी ही क्वांटिटी में होता है, बट ये विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, डिसीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं. और अगर आपको सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं मिलती है इन न्यूट्रिएंट्स की तो हमें बहुत सारी डिसीज भी हो सकती हैं. Vitamin A. Vitamin A is needed for growth and repair of bones, teeth and skin. It is also helps in proper functioning of the eye. Vitamin A की ज़रूरत बोन्स की ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, टीथ और स्किन के लिए. इसके अलावा आइज़ की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है. Vitamin B is needed for functioning of heart in proper manner. It also helps in working of nervous system. इसी तरह से जो विटामिन बी है वो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी है. Vitamin C helps in the formation of blood, healing of wound and keep the gum and bones healthy. Vitamin C
ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, गम्स को, बोन्स को हेल्दी रखता है। विटामिन डी, Vitamin D is needed for the proper growth of bones. This vitamin is also made by the body in the skin with the help of sunlight. Vitamin D जो है वो bones की proper growth के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और Vitamin D जो है ये हमारी बॉडी भी प्रिपेयर करती है सनलाइट की हेल्प से। Calcium. Calcium is the most plentiful mineral found in the body. Milk and milk products such as cheese and butter are rich in calcium. Fish, dry beans, wheat and nuts are good source of calcium. Calcium helps your body in building strong bones, teeth and muscles. It is a bodybuilding mineral. It is also needed in the formation of blood. Calcium देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी बोन्स के लिए, हमारी टीथ के लिए। तो कैल्शियम जो है चीज़ या मिल्क प्रोडक्ट जितने भी होते हैं सब में मिलता है आपका। और एक्चुअली कैल्शियम जो है हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में, टीथ को और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है। Iron. Iron is a part of your blood. It is needed by your body to make blood. Food items like fish, beans, walnuts, cashew nuts, groundnuts, egg and green leafy vegetables such as spinach are rich in iron. Iron actually आपके blood का part होता है और ये इसकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को ब्लड बनाने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आयरन रिच होते हैं, तो आपको ये सारे ही फूड लेने चाहिए। Roughage. Roughage is the fiber in our food. Fibers play an important role in our digestive system. It helps to carry waste material out of the body. All kinds of fruits, vegetables and seeds have fiber. Roughage एक्चुअली जो हमारे फूड में फाइबर पाया जाता है वो होता है, और रफेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। एक्चुअली जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो जितने भी आपके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या आपके सीड्स होते हैं, इन सब में ही फाइबर होता है। Water. Water is important for our body. It helps in proper digestion. It also reduces the human's body temperature. Water also helps the body get rid of wastage in the form of urine and sweat. 60% weight of our body made by water. वाटर भी प्रॉपर डाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा बॉडी में जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है, जैसे कि आपका यूरिन या स्वेट की फॉर्म में एक्चुअल में आपका वाटर ही होता है। Balanced diet. A daily diet should provide all the nutrients in the right amount. Such a diet is called a balanced diet. A balanced diet helps your body to grow, function properly and remain healthy. If the diet contains less nutrients, the body becomes weak, and if the nutrients are more, it affects the body adversely. It is very important that our diet is balanced. देखिए आप डेली जो खाना खाते हैं, डेली जो डाइट लेते हैं, उसमें सारे ही न्यूट्रिएंट जो है वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट एक्चुअली क्या करती है, आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करती है, आपको हेल्दी रखने में हेल्प करती है। अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे तो डिसीज़ होने का खतरा रहता है। इसके अलावा हमारी बॉडी जो है वो वीक हो जाती है, और अगर आपके न्यूट्रिएंट्स डाइट में ज़्यादा हो गए तो वो भी हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। तो इसीलिए हमारी डाइट जो है हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। Do you know what? We take vitamins and mineral pills and tonics too, but vitamins and minerals found in fresh food are more easily absorbed by our body. देखिए कुछ लोग होते हैं जो विटामिन सी की पिल्स लेते हैं, कुछ मिनरल्स पिल्स लेते हैं, है ना, या टॉनिक्स लेते हैं, बट जो विटामिन एंड मिनरल्स जो फ्रेश फूड में होते हैं वो एक्चुअली जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारी बॉडी उन्हें बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। Deficiency disease. Deficiency disease are caused due to the insufficient amount of nutrient in the food. अगर आपकी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से कुछ डेफिशिएंसी डिसीज हो जाती है। तो आपको यहाँ पे एक टेबल दी गई है, आपके यहाँ पे न्यूट्रिएंट, उसका इंपॉर्टेंस, डेफिशिएंसी डिसीज एंड सोर्स, यानी कि कौन सा न्यूट्रिएंट है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है, और आप उस न्यूट्रिएंट को किस सोर्स से ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए विटामिन ए, हेल्दी आइज एंड गुड स्किन, नाइट ब्लाइंडनेस, कैरेट, स्पिनच, फिश, मैंगो। विटामिन ए जो है आपको पहले भी बताया था कि आइज और स्किन के लिए बहुत हेल्दी होता है, और इसकी कमी से आपको एक बीमारी हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस। तो सोर्सेज हैं आपके ये सारे ही, कैरेट, मैंगो, स्पिनच। विटामिन बी, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स, बेरी बेरी, पीस, मिल्क, मीट, एग। विटामिन बी जो है वो नर्वस सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी कमी से डिसीज होती है बेरी बेरी। Vitamin C, healtी gums and for healing wounds, scurvy, आंवला, लेमन, ऑरेंज। विटामिन सी आपके गम्स को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है, और इसकी कमी से होती है एक डिसीज स्कर्वी। और जितने भी आपके जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, यानी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, रिकेट्स, फिश, मिल्क, एग्स,
सनलाइट। विटामिन डी टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है और इसकी कमी से एक बीमारी होती है रिकेट्स। और विटामिन डी जो है ज़्यादातर आप सनलाइट से ले सकते हैं। विटामिन ई प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, मस्कुलर क्रैम्प्स, ऑयल्स, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सेसमे ऑयल। विटामिन ई जो है मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है और इसकी कमी से मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाते हैं और ये जनरली आपका मिलता है मस्टर्ड ऑयल, सेसमे ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल में। विटामिन के blood clotting, excessive bleeding from wounds, green leafy vegetables like spinach, coriander. विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में बहुत हेल्प करता है और इसकी कमी से क्या हो जाता है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है अगर कोई घाव है उसमें। आयरन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, एनीमिया, स्पिनिच, एप्पल एंड पल्सेस। आयरन जो है हीमोग्लोबिन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है और अगर आयरन की कमी हो जाती है तो उससे होता है एनीमिया। आयोडीन नॉर्मल बॉडी ग्रोथ, गोइटर, फिश, आयोडाइज सॉल्ट। आयोडीन बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी कमी से एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं गोइटर और ये जनरली आयोडीन जो है आपका आयोडाइज सॉल्ट में मिलता है। आप कभी भी देखिएगा नमक में हमेशा लिखा होता है आयोडाइज सॉल्ट, दैट मीन्स उसमें आयोडीन प्रेजेंट है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, वीक बोन्स, डल टीथ, मिल्क, चीज, लीफी वेजिटेबल्स। कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है वो बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है और उनकी कमी से बोन्स वीक हो जाती हैं और टीथ भी डल हो जाते हैं। Diseases. Disease is a condition that does not allow the body to work properly. When we are sick, our body do not work properly. अब देखिए बीमारी जब होती है तो एक्चुअली बीमारी का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है। Types of disease. All diseases are classified into two main categories: non-communicable diseases, communicable diseases. अब दो कैटेगरीज हैं आपकी, नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल। तो सबसे पहले नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, डिसीज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। वो बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे नहीं फैलती हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। Communicable disease, the disease that spread from one person to another are called communicable disease. These diseases are caused by microorganisms. They can be seen under powerful microscope. Most microbes belong to one of the four major groups: bacteria, virus, fungi, protozoa. अब जो बीमारियां एक पर्सन से दूसरे में फैलती हैं वो होती हैं आपकी कम्युनिकेबल और ये जनरली होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और आपके देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन चारों की वजह से ज़्यादा आपकी बीमारियां होती हैं: बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। और ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। Do you know what? All microbes do not responsible for disease. Some microbes are good for us, like lactobacillus, which is responsible for milk changes into curd. जितने जो माइक्रोब्स होते हैं सारे ये डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस जो कि दही में पाया जाता है, ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। डिसीज देखिए, अब ये आपको टेबल दी गई है डिसीज और इन्हें कौन से जर्म्स स्प्रेड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कॉलरा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, प्लेग, मेनिंजाइटिस, ये होते हैं बैक्टीरिया से। कॉमन कोल्ड, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, एड्स, और इसको फैलाने वाली हैं वायरसेस। मलेरिया, डिसेंट्री, प्रोटोजोआ। इन्फेक्शन ऑफ स्किन, आइज एंड हेयर, फंगी। अब ये जो स्किन या आइज या हेयर के इन्फेक्शन होते हैं ये फंगी की वजह से होता है। Do you know what AIDS stand for? Acquired Immunodeficiency Syndrome. ये AIDS की full form है। How can we prevent us from communicable disease? Communicable diseases spread easily, hence it is necessary that we have to careful about these diseases. To stop germ spreading, we have to adopt some method. देखिए जो communicable disease होती हैं वो बड़ी जल्दी फैल जाती हैं, तो इसीलिए हमें बहुत ही careful रहने की ज़रूरत है। Control breeding and spread of germs. We must effort to control the breeding and spread of germs. This is done in the following ways. House must be airy with sufficient sunlight. Germs die when exposed to sunlight. Heating food till it boils or keep frying also kill many microbes. Kitchen floor, toilet and bathroom must be washed with disinfectants regularly. देखिए आपका जो घर है तो क्लीन होना चाहिए और एयरी होना चाहिए और उसमें प्रॉपर सनलाइट आनी चाहिए, क्योंकि जर्म्स, आधे जो जर्म्स हैं ना आपके, वो क्या होते हैं जैसे ही सनलाइट आती है उसमें मर जाते हैं। इसी तरह से खाने को अच्छे से बॉईल करना है या जैसे फ्राई करते हैं तो उससे बहुत सारे जो माइक्रोब्स होते हैं मर जाते हैं। आपका किचन फ्लोर, टॉयलेट और बाथरूम को डिसइंफेक्टेंट से रेगुलरली वॉश करना चाहिए। वाटर कैन बी मेड safe for drinking by boiling, filtering and chlorinating. It is important to drink clean water to prevent typhoid, jaundice and cholera.
वाटर जो है आपका हमेशा साफ़ होना चाहिए, और उसको साफ़ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसे बॉईल कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं, क्लोरिनेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर साफ़ पानी नहीं पिएंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। Milk must be boiled properly to kill the germs in it. Food must be covered properly. Dustbin must be covered to prevent the breeding of flies. Mosquitoes breed in stagnant water, so there must not be any stagnant water outside or inside our houses. देखिए, मिल्क को प्रॉपरली बॉईल करना चाहिए, फूड हमेशा आपका कवर्ड होना चाहिए, और डस्टबिन्स भी कवर्ड होने चाहिए जिससे कि जो फ्लाइज की ब्रीडिंग ना हो। इसी तरह से मस्कीटोज जो है वो स्टेगनेंट वाटर में ब्रीड करते हैं। स्टेगनेंट वाटर का मतलब होता है स्टैंडिंग वाटर, ओके। तो जहाँ कहीं पे भी आपको स्टेगनेंट वाटर मिले तो उसको वहाँ से साफ कर देना चाहिए। Wire netting on the doors and windows of a house must be fixed to prevent the entry of flies, mosquitoes and other harmful pets and insects. Mosquito nets and mosquito repellent cream must be used to keep away mosquito. इसी तरह से डोर्स और विंडोज़ में प्रॉपर वायर नेटिंग होनी चाहिए जिससे कि आपके मस्कीटोज या फ्लाइज अंदर ना आ सकें। इसके अलावा आप मस्कीटो नेट का यूज़ कर सकते हैं या फिर मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम्स आती हैं कुछ, जैसे कि ओडोमॉस लाइक, तो इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि मस्कीटो दूर रहें। Vaccination. This is an effective way of preventing communicable diseases. Vaccines are made of small quantities of very weak germs of a particular disease. They are given orally or injected. When they enter the body produces substance capable of fighting the germs of that disease. This creates immunity against a particular disease. अब वैक्सीनेशन के बारे में आपने तो सुना ही होगा। वैक्सीनेशन क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन दी जाती हैं, और एक्चुअली आपके जो वैक्सीन होते हैं आपके वीक जर्म से बने होते हैं, बहुत मतलब वीक जर्म्स होते हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए। इसके बाद या तो इनको ओरली दिया जाता है या फिर बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इससे फिर क्या होता है कि बॉडी में ना उस पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए इम्यूनिटी बनती है। सम कॉमन वैक्सीन्स दैट आर गिवन टू ऑल चिल्ड्रन आर polio vaccine to prevent polio, TPT vaccine to prevent diphtheria, tetanus and pertussis, MMR वैक्सीन टू प्रिवेंट मीजल्स, मम्स एंड रुबेला। देखिए, ये कुछ कॉमन वैक्सीन्स हैं जो बच्चों को दी जाती है, छोटे बच्चों को जब वो न्यू बॉर्न से 2 साल तक के होते हैं, तो इस बीच में उन्हें ये सारी वैक्सीनेशन दी जाती हैं ताकि ये सारी बीमारियां उन्हें ना हो। Do you know what? Edward Jenner, a British doctor, invented a vaccine to prevent smallpox. Because of this successful vaccine, smallpox eradicated from the world. एडवर्ड जेनर थे एक डॉक्टर, ब्रिटिश डॉक्टर, उन्होंने एक वैक्सीन इन्वेंट की थी स्मॉल पॉक्स के लिए, और इस जो स्मॉल पॉक्स है अब वो कम्प्लीटली इराडिकेट हो चुका है वर्ल्ड से। लुई पास्चर, अ फ्रेंच केमिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इन्वेंटेड वैक्सीन टू प्रिवेंट कॉलरा एंड रेबीज। इसी तरह से आपके एक फ्रेंच केमिस्ट थे लुई पास्चर, उन्होंने भी एक वैक्सीन इन्वेंट की जिससे कि कॉलरा और रेबीज से बचा जा सके। Let us recall the food we eat daily in our diet which have nutrients in it like carbohydrates, protein, vitamins and minerals. Daily diet which have nutrients in right amount is called balanced diet. Diseases caused by the lack or shortage of vitamins and minerals are called deficiency diseases or non-communicable diseases. देखिए, हम खाना जो डेली खाते हैं उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके, और डेली डाइट में इन न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, और इनसे बनती है आपकी बैलेंस्ड डाइट। डिसीजेज जो किसी विटामिन या मिनरल की कमी से होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीज या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। द डिसीज दैट स्प्रेड वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज इज स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, कॉन्टैक्ट, इंसेक्ट एंड फूड। जो बीमारी एक पर्सन से दूसरे को फैलती है उसे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज, एंड कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड होती है आपसे आपके एयर, वाटर, इंसेक्ट, कॉन्टैक्ट या फिर फूड से। Microbes like bacteria, protozoa, virus and some fungi are responsible for infectious disease. Proper cleanliness of food, water and our surrounding keep us infections free and we will preventing ourselves to be sick. कुछ आपके जो माइक्रोब्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या कुछ फंगी, ये बहुत सारी इन्फेक्शियस डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आप अपने आसपास साफ सुथरा रखेंगे, अपने फूड को, वाटर को और अपने सराउंडिंग इन सभी को क्लीन रखेंगे तो आप इन्फेक्शन से दूर रह सकते हैं। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इसकी प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।